है तो ऐसा जरूर करें। अगर नहीं है तो फिर आप दूसरी चीज़ों की तरफ आप जा सकते हैं, इसमें आप आराम से ले लें। जैसे कि आप अगर नीट एमबीबीएस नहीं भी क्वालिफाई करें तो आप बीडीएस क्वालिफाई कर सकते हैं। आप और भी तरफ आप फार्मेसी में जा सकते हैं, आप यूनानी में जा सकते हैं, और भी चीज़ों में जा सकते हैं मेडिकल फील्ड में। Yes, the question you have asked is absolutely correct and relevant. As जो poor people होते हैं या poor students होते हैं, they think that we have so less of opportunity or so less of resources available that as we cannot afford highly or a very renowned coaching institute, or we do not have so much of resource, matlab we are deprived of the resources. Yeah. And they think that the rich student have access to everything. They have online also, they can learn, they have access. But the reality is that there are pros and cons to everything. That a rich student may have so much of resources, so much of money. If they cannot do MBBS from a government college, their parents can afford a private college, or they can send them to abroad, or they can take a drop here. But the thing is that the motivation, the amount of discipline a humble student or a student from a poor background will have for their dream, that much amount of passion will be lacking in a rich student. So it everyone has its own pros and cons or deficiency or benefits. But rather than thinking of your deficiency, you have to think about your benefits or what extra you can have. A poor student I have seen are comparatively much more hardworking than a student from a very rich background, and they are much more motivated to achieve their goal. They have seen so much of their childhood in so much of deficiency, so they more appreciate the resources whichever they get. So they should try to look for a whichever guidance they can get easily. But the main thing is that hard work beats talent when talent doesn't work hard. So of course rich student can afford many private colleges or can go to abroad, but a poor student by their hard work can beat anything. So if you are planning even for a MBBS entrance exam or whatever it is, you have to first think that how much do you really want it, and then how much amount of work you are able to do for it to achieve your goal. And if you have attempted an exam and you are deciding that you did not get enough or a good rank to pass or to take an admission, so you should take a drop, or you should do for or go for another branches. Then the question you must or you should ask to yourself is, as my husband said, that how much you want it, and was this attempt really matlab you worked hard for it, or it was just you was just trying to दे ही लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है. अगर आपने अपना 100% दिया था उस अटेम्प्ट में और उसके बाद भी आपका नहीं हुआ, मतलब आप जितना कर सकते थे आपने कर लिया और सारे रिसोर्सेज सब कुछ यूज कर लिया, और अब आपको लग रहा है कि नहीं अब मैं दोबारा से इसमें नहीं जाना चाहता, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अदर ऑप्शंस लाइक BDS, और बिकॉज दीज ब्रांचेस आर allotted just अंडर दी MBBS, द मतलब द रैंक्स जहाँ पे MBBS की सीट खत्म हो जाती है वहीं पे ये शुरू होती है. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अटेम्प्ट ही आपका ऑनेस्ट नहीं था, आप इसमें और मेहनत कर सकते थे, आपने बस ऐसे ही देखने देखने में इसे बिता दिया, तो फिर आपको डिसाइड करना है कि आप अपना 1 साल और फिर से ऐसे ही देना चाहते हो बिना मेहनत किए, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए फैमिली का रिसोर्स अपना टाइम सब कुछ वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप ऑनेस्टली एक अटेम्प्ट देना चाहते हो जिसमें आप अपना पूरा 1 साल बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करोगे, अपना जितना भी रिसोर्स है उसे करोगे, और सिर्फ एनसीईआरटी ही, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी की 11th और 12th की, बस उसे ही लर्न करना है. कुछ भी करके उसे लर्न करोगे, उसे प्रैक्टिस करोगे और प्रीवियस 10-20 ईयर्स के पेपर सॉल्व करना है. दैट इज इट. ये अगर आप खुद से प्रॉमिस ले सकते हो कि मैंने अपने आप से सच रहना है, कि एग्जाम के बाद मुझे ये ना हो कि रिग्रेट्स हो रहा है कि काश और मेहनत करी होती तो हो जाता, तो मतलब ये अगर आप कर सकते हो डिसाइड कि नहीं मैं अब एक अटेम्प्ट ऑनेस्टली दूंगी, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको जो है ज्यादा ड्रॉप की जरूरत पड़ेगी. एक अटेम्प्ट ऑनेस्ट इनफ होता है. इसीलिए हर स्टूडेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो पहले ही बार जब वो 11th-12th में आए तभी उसका गोल इतना अच्छा हो और वो इतने अच्छे से हार्डवर्क करे कि उसको ये ड्रॉप वाले फेज में जाना ही ना पड़े. अगर जाना पड़े भी तो उसको फिर ये होना चाहिए कि हाँ मैंने पूरी कोशिश करी थी, थोड़े से मैं रह गया था, तो ठीक है फिर 1 साल और प्रैक्टिस कर लेते हैं. या फिर उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, उसकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी, पर वो करना चाह रहा था तो भी उसे करना चाहिए, रादर देन गोइंग कि बस करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं. अगर आप
कर सकते हो, अगर आप इतने मेहनती हो तो कोशिश करना चाहिए पहले अटेम्प्ट में कर लिया जाए या एक दो अटेम्प्ट में, क्योंकि जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं, साल तो बढ़ता जाता है लेकिन एक फेलियर वाला रहता है कि यार मैं फेलियर हूँ, पता नहीं मैं नेक्स्ट टाइम में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सेल्फ डाउट जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं बढ़ता जाता है, इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि जितना आप, क्योंकि मेहनत तो करनी ही है, अब आप उसी को 3-4 साल में करो या फिर अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लो। तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपना मेहनत करना है, अपना हार्डवर्क करना है, डिसिप्लिन करना है, और रिग्रेट्स नहीं होना चाहिए कि काश ये हो जाता तो मैं वो कर लेता। और अगर आप पुअर हो तो भी आपका बेनिफिट है, क्योंकि आप में जितना जज्बा और डेडिकेशन और हार्ड वर्क आपने अपनी फैमिली से अपने बचपन में सीखा है, वो आपको बिल्डअप कर रहा है एज अ पर्सन, वो किसी और स्टूडेंट में नहीं होगा। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज है जो पुअर फैमिलीज के हैं या फार्मर के बेटे हैं या कुछ भी है जिसके लाइट भी नहीं थी, और उसने अपने मेहनत से अपने हार्डवर्क से, भले ही उसको 1-2 साल ज्यादा लगा, और उससे अपने ड्रीम को अचीव किया। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स कवर किए इसमें, थैंक यू फॉर दैट। बट स्टिल एक रियलिटी ये है कि स्टिल द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल हु कांट क्रैक दिस एग्जाम्स, तो वो ये प्रिफर करते हैं कि इंडिया से बाहर भी अब आजकल बहुत एक ट्रेंड बन गया है कि पीपल आर गोइंग टू यूक्रेन, रशिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। सो डू यू थिंक कि जो क्वालिटी एमबीबीएस की इंडिया में है, डज इट रियली मैच विद दैट? Definitely quality doesn't match with the Indian standards, but ये है कि if you cannot qualify NEET in a government institute, then the option is doing it. If you want to do it, you can do it in a private institute. So the fees of private institute in India, the total fees of entire MBBS is around 1 crore. But if you go to abroad countries like Kazakhstan, Russia, so it costs around 40 lakhs to do MBBS there. So that's why most people prefer going abroad. क्वालिटी एजुकेशन की डेफिनेटली नहीं है, और पेशेंट एक्सपोजर भी बहुत डिफरेंट है। अगर आपको इंडियन सेटिंग में प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ पे पेशेंट एक्सपोजर बहुत डिफरेंट है, आपके पास डिफरेंट पेशेंट्स आएंगे, डिफरेंट डिजीजेज होंगी। लेकिन वर्थ इट है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वापस आना है, आपको एफएमजी देना है, उसके बाद फिर आपको पीजी भी अगर आप यहीं से कर रहे हैं तो फिर आप कवर कर लेंगे मोर और लेस। तो अगर कोई वाकई में एमबीबीएस करना चाहता है तो उसके लिए बिल्कुल ऑप्शन सही है कि वो कर सकता है बाहर जाके, अगर वो अफोर्ड कर सकता है। या सही बात है, तो क्योंकि यहाँ से नाउअडेज जी। कंटिन्यू करिए। जी जी, आप बताएं। मैं पूछ रहा था कि वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद जब यहाँ प्रैक्टिस करना होता है, सो आई थिंक देयर इज सम एग्जाम दैट यू नीड टू क्रैक, फिर उसके बाद यू गेट द मेडिकल लाइसेंस, तो उसका फेलियर रेट भी आई थिंक ज़्यादा है। सो फिर वो करने के बाद भी दे हैव टू प्रिपेयर फॉर नीट पीजी, आई थिंक, अगर पीजी इंडिया से करना है तो। इज इट ट्रू? जी जी बिल्कुल। अभी ये सिस्टम है कि आप एफएमजी देते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जाम, एफएमजी। उसको क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करनी पड़ती है 1 साल। उसके बाद फिर आपको नीट पीजी देना पड़ता है उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है इंडिया में प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने करने का का। एज ए एमबीबीएस, और अगर आप कुछ पीजी करना चाह रहे हैं तो फिर आपको पीजी का वही नीट पीजी के थ्रू, जैसे सब इंडियन स्टूडेंट्स करते हैं वैसे ही आपको क्वालिफाई करके फिर पीजी कोर्स करके फिर आप अप्लाई कर सकते प्राइवेट कॉलेजेस भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर जो लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो उसके भी, लेकिन आई थिंक कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो आप कुछ इसमें बताना चाहेंगे? यस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रोज सबसे पहला तो ये है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादातर जो है अफोर्ड कर सकते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स इसे, बहुत ही अफोर्डेबल ट्यूशन फीस होती है इसकी। जैसे व्हेन आई डिड माय एमबीबीएस, माय ट्यूशन फीस वाज जस्ट 25,000, बट अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो फिर वो तो 80 lakhs to 1 crore, डिपेंडिंग ऑन विच प्राइवेट कॉलेज इज दैट। फिर दूसरी चीज ये होती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होती है और वेल इक्विप्ड फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है, और उसका एक रेपुटेशन बहुत ज्यादा होता है। वंस क्लियरिंग अ डिग्री और वंस क्लियरिंग योर एमबीबीएस एंड गेटिंग अ डिग्री, द डिग्री फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज विल बी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विल बी वेल रिकॉग्नाइज्ड, ताकि आपका जो सीवी बनता है वो बहुत ही अच्छा बनता है कि आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया है। और उसकी भी रैंकिंग होती है, आप जितने अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करते हो, जब आप उसके बाद प्रैक्टिस करने पे जाते हो तो वो कंसिडर करते हैं कि ये बच्चा वाकई में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होगा, तभी इसने इस एंट्रेंस एग्जाम को निकाल के इस गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की। और वहाँ पे फील्ड्स, मतलब डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे होंगे जो उनके टीचर होंगे, पेशेंट भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसके कंपैरिजन में मतलब स्किल्स भी बहुत अच्छे से डेवलप हुई होगी।
और जब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रहते हैं तो आपका वो एम्फेसाइज करता है कि सर्विंग कम्युनिटी, और कि मतलब जो अंडर या अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है उसे भी आपको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वैसे पेशेंट आते हैं। और मनी ओरिएंटेड से ज्यादा आपका ये बनता है कि हाँ मतलब कैसे सोसाइटी एक्चुअल में है और कैसे हमें उससे डील करना है, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब। लेकिन उसके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कॉन्स बस यही है कि जैसे कि आजकल इतनी ज्यादा जो मतलब स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं और लिमिटेड सीट्स हो रही है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में भी डिले हो सकता है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट जो होती है उस स्टेट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वो रेगुलेट करती है। फिर ये है कि कुछ कॉलेजेस में कुछ लैक कर सकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर टू, कि मतलब जो मॉडर्न चल रहा है उतना वो अप टू डेटेड नहीं है, ये भी एक उसका कॉन्स है। फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर हम प्रॉस की बात करें तो यही है कि अगर आपको गवर्नमेंट में सीट नहीं मिल रही है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो ज्यादा सीट्स होती है प्राइवेट में कंपेयर टू गवर्नमेंट। फिर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा डेवलप्ड होता है, क्योंकि ये प्राइवेट फंडिंग हो रही होती है उसकी, तो वो अपने आप को थोड़ा ज्यादा रिसेंट से अपडेटेड रखता है। फिर उसका जो करिकुलम है वो भी फ्लेक्सिबल होता है, और इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप उसकी भी ज्यादा चांसेस रहती है, लेकिन सब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का यही है कॉन्स, कि उसका बहुत ज्यादा ट्यूशन फीस होता है। तो सिर्फ रिच ही या फिर मीडियम टू हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। जो पुअर या लो सोशियो इकोनॉमिक वाले होते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होती है वो प्राइवेट अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में वेरी करती है। और ये भी होता है कि अक्सर ये लोग अपना प्रॉफिट ओरिएंटेड ज्यादा रहते हैं, तो फिर वो बच्चे के एकेडमिक्स और एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड भी नहीं इसमें प्रोवाइड किया जाता। तो प्राइमरीली हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अपना टारगेट करे, क्योंकि उसका लो ट्यूशन फीस होता है और ज्यादा अच्छी एजुकेशन होती है और ज्यादा वो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड होती हम पहले ऐसे सुना करते थे कि एमबीबीएस डिग्री से ही डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं आज से 30-40 साल पहले, लेकिन आई थिंक एक सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। पीजी या एमडी एमएस करना इज द न्यू नॉर्मल, या इट्स द न्यू बेसलाइन। तो इज दैट रियली ट्रू कि एक एमडी एमएस करने के बाद ही यू विल बिकम क्वालिफाइड इनफ प्रैक्टिस इन इंडिया? जी जिशान भाई, अब तो एम डी एम एस भी मतलब आउटडेटेड हो गया है। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं किसी अच्छी सिटी में, तो अब आपको सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। सुपर स्पेशलाइजेशन मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए मैं एमडी कर रहा हूँ तो मुझे डीएम करना पड़ेगा। अगर मेरी एमडी इंटरनल मेडिसिन में है तो मैं डीएम अलग अलग फील्ड्स में कर सकता हूँ, जैसे कि कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइन, रिमेटोलॉजी। और अगर किसी ने सर्जरी किया है तो फिर वो न्यूरो सर्जरी, कार्डियो सर्जरी और पीडियाट्रिक सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी। तो ये सब इसका यहाँ तक ट्रेंड पहुंच गया है। लेकिन अगर कोई सिर्फ एमबीबीएस करके ही प्रैक्टिस करना चाहता है तो ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकता है। वो किसी अंडर डेवलप्ड एरिया में जाके प्रैक्टिस कर सकता है, या फिर वो किसी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, या फिर कोई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इन सब में वो जॉब कर सकता है आराम से। और एमबीबीएस के बाद, एमडी करने के बाद वो खुद से प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, अदर देन विच आर मेट्रो सिटीज को छोड़ के। जो नॉर्मल सिटीज हैं जैसे कि लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, इन सब में भी अभी भी एमडी करके प्राइवेट प्रैक्टिस करना पॉसिबल है। और उसके बाद लेकिन अभी ट्रेंड जो है वो हम लोग देख रहे हैं, इंक्रीजिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि एमडी के बाद डीएम करना ही करना है। जस्ट लाइक पहले एमबीबीएस के बाद एमडी करने का ट्रेंड था, वैसे ही एमडी के बाद डीएम करने का भी ट्रेंड आ गया है। तो अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेट्रो सिटीज में, या तो फिर आपको डीएम इज मस्ट ना। तो ये सिनारियो है अभी। राइट। तो डॉक्टर सना, आपने भी बहुत कुछ सॉफ्ट स्किल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स कवर किए थे। उसी पे मेरा एक सवाल है कि जस्ट एक थियोरटिकल या एक एजुकेशनल बैकग्राउंड के अलावा कौन से स्किल्स होने ज़्यादा ज़रूरी हैं, जस्ट टू स्टे इन द मेडिकल प्रोफेशन? जी, so apart from medical knowledge, medical professionals should focus on developing strong communication skills, as effective communication with the patient, colleagues, and other care building or other healthcare professional is crucial for providing quality care and building a rapport with the patient and fostering a positive relationship. So, additionally, skills like empathy, understanding what the patient or how much the patient is undergoing or how much the patient is in pain due to the illness, or
active listening. A doctor should be a very good listener, and he should listen to the sufferings of the patient, and that he should be patient, that he should have patience, as most of the patients come from a low socioeconomic background, or they are so much concerned about their illness that they are not understanding whatever you are saying. So you have to be patient, or in especially if you are revealing a big diagnosis to the patient, as the family member is having a cancer or HIV AIDS or any chronic illness, and the mortality is very high, that the death rate is very high, then you have to be patient and then counsel the patient or his attendant about the illness. And if you are in an emergency and a patient came and he's like no more, then also you have to be patient and convey this message that your family member is no more. And you should understand that the reaction of the patient attendant can be sometimes very hard, or they are in a phase of denial and they don't want to listen that how it happened. Then you should be, or you should have empathy that he is also a human being and he has feelings. So whatever reaction he or she is having is just in response to their love to the patient. So you should not just react or just say that how you can do this to me, I am a doctor and you are just a patient. Just like consider the patient as a human being and treat him like that. इसमें मैं एक चीज़ Right. ऐड करना चाहूँगा चलो कि Yeah, please. मतलब एज अ रेसिडेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए बिसाइड्स मेडिकल नॉलेज, वो ये है कि आप सब्र करना और लोगों के साथ अच्छे तरीके से डील करना सीखें, खास करके जो पेशेंट्स होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अलग अलग तरीके के लोगों से साथ डील करना पड़ता है। पेशेंट जो होता है वो खुद परेशान होता है, उसके साथ वाले सब परेशान होते हैं, आपके पास वो पूरा अपना उम्मीद लेकर के आते हैं और बहुत ही परेशानी में आते हैं। तो उनके साथ कैसे डील करना है, उनको कैसे काउंसल करना है, कैसे उनको अच्छी खबर या बुरी खबर देनी है, वो अगर आपको बुरी तरीके से बोल रहे हैं तो फिर कैसे उस पर रिएक्ट करना है। क्योंकि जो रेसिडेंसी होती है खास करके एमबीबीएस जो होता है वो तो बस एक थियोरेटिकल डिग्री होती है, लेकिन जैसे ही आप एमडी में आते हैं आपको मैदान में खड़ा कर दिया जाता है, आप बिल्कुल फील्ड पे रहते हैं, आप फर्स्ट कांटेक्ट रहते हैं पेशेंट के हर चीज़ के। तो डील कैसे करना है लोगों के साथ, ये आप अपने अंदर डेवलप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो कल्चर है हमारे मेडिकल कॉलेज में और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में, मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस ऑल अक्रॉस इंडिया, तो उसमें पेशेंट के साथ खास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो गरीब पेशेंट होता है तो उसके साथ आप कैसे भी बात कर सकते हैं, मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है आपके, आप उसको डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ज्यादातर डॉक्टर्स, मतलब ज्यादातर तो नहीं कहूंगा लेकिन अच्छी खासी तादाद है जो ऐसे ही करते हैं। लेकिन आप साथ में मैं ऐसे भी देखता हूँ कि मेरे कलीग्स ऐसे भी हैं जो इतनी इज्जत से, इतनी अदब से बोलते हैं पेशेंट को कि लगता है कि वो उसके घर वाले हैं या फिर उसके कोई रिश्तेदार हैं। तो एक इंसान को इंसान समझना, उससे मुरव्वत रखना, उसके जो है हमदर्दी रखना, उससे इज्जत से बात करना, जो कुरान में कहा गया है कि तुम क़ूलू लिन्नासी हुस्नन हुस्नन, कि तुम लोगों से भली बात किया करो। तो इस चीज़ का जो है वो इसको प्रैक्टिकल में लाना, तो ये एक अपने अंदर कल्टीवेट करनी पड़ती है आदत, अपने अंदर डालनी पड़ती है, जो शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होती है। जब इंसान फर्स्ट ईयर में होता है तो उसके ऊपर वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि मतलब ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, लेकिन मेडिसिन में जो फर्स्ट ईयर रेसिडेंट होता है उसको सोने के लिए मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे मिलते हैं, और एक दिन ऐसी ड्यूटी होती है कि उसको 36 to 40 आवर्स लगातार काम करना होता है, विदाउट मतलब स्लीपिंग, विदाउट इवन सिटिंग डाउन फॉर लाइक 5-10 मिनट्स। खाना खाने को मिल जाता है, आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं, उसके अलावा आपको काम करना ही करना है। उसके बाद जो है पेशेंस दिखाना, सब्र दिखाना, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ग्रेजुअली धीमे धीमे आप सीखते हैं ये चीज़, तो ये चीज़ अपने अंदर कल्टीवेट करना ये बहुत मुश्किल, ये ज़रूरी होता है। उसके अलावा रेसिडेंसी जो होती है वो आपको बहुत सारी चीज़ें और सिखाती हैं। लीडरशिप सिखाती है आपको। जब आप फर्स्ट ईयर होते हैं तो आप सबसे ज़्यादा मजदूर होते हैं, बेसिकली यूनिट के सबसे लोअर मेंबर होते हैं। फिर आप धीमे धीमे प्रोग्रेस करते हैं, JR2 बनते हैं, JR3 बनते हैं, फिर SR बनते हैं। तो धीमे धीमे आप जो अपने अंडर लोग होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी गलतियों का भी आप जो है बर्डन बेयर करते हैं, और उनकी जो कोई अच्छी होती है उसके लिए भी आपको अप्रिसिएशन मिलता है। तो आपको लीडरशिप अपने आप से सिखाती है रेसिडेंसी, और आपको सीखनी पड़ती है। तो पहले से जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है तो उसको डेफिनेटली फायदा मिलता है। अगर कोई पेरेंट है, कोई अपने बच्चों को वो इस फील्ड में लाना चाह रहा है, तो डेफिनेटली उसको ऐसी चीज़ों में इनको इन्वॉल्व करना चाहिए जहाँ पे ग्रुप वर्क हो, जहाँ पे लीडरशिप स्किल्स डेवलप करी जाती हों। तो ये सब चीज़ें जो हैं
सीखने को मिलती हैं काफ़ी, और सिखानी पड़ती है अपने आप को। बहुत अच्छा बताया आपने। जब एएमयू में था तो मैंने अपने आंखों से देखा है जेएनएमसी में डॉक्टर्स को पूरा दिन दिन रात रात वो एक साथ खड़े रहते थे। तो दैट्स रियली द रियलिटी ऑन द ग्राउंड। एंड एक जो एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं, जो एमबीबीएस के अलावा बीयूएमएस या आयुर्वेद या कुछ और यूनानी ये सब कर लेते हैं, तो उनमें एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा एक डेवलप ना हो, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? ये तो देखिए, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसे डेवलप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर फील्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है विद इन इटसेल्फ। यूनानी जो है वो हमारी एमबीबीएस आने से पहले, एलोपैथिक प्रैक्टिस से पहले, जो पूरी की पूरी हमारी मेडिसिन थी वो यूनानी थी। खास करके जो जिन जिन कंट्रीज में मुस्लिम्स का रूल था, जिसमें इंडिया भी आती है, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आता है। तो और मुसलमानों ने ही पहला हॉस्पिटल जो है वो इजाद किया। तो हमारी बहुत लंबी हिस्ट्री रही है, उसकी पूरी लेगेसी है यूनानी के पास। तो इसमें बिल्कुल भी कोई इन्फीरियोरिटी की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। ये तो आज का मतलब सिस्टम ऐसा हो गया है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स को, एमबीबीएस डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिए जाने लगा है। इसलिए मतलब यूनानी लोगों को कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इसमें ये उनको ये सोचना चाहिए कि हम इतनी बड़ी लेगेसी लेके चल रहे हैं अपने साथ में। हम और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें एलोपैथी का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये बात सच है अपने में। तो उनको ट्रीट करने के लिए एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन वो चल रहे हैं, इस बात का भी उनको फख्र होना चाहिए। इसके अलावा जो है हेल्थ फोर्स में उनका बहुत बड़ा नंबर है, जो है पेरिफेरल एरियाज में, जहाँ पे हर जगह एमबीबीएस डॉक्टर नहीं पहुंच सकता, वहाँ पे वो लोग रह के एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। तो ऑल्दो मतलब आज की सिचुएशन में जिसका एमबीबीएस में नहीं हो पाता वो जाता है यूनानी में। लेकिन ये एक मतलब बुरी चीज़ है, बदकिस्मती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि हम एक बहुत बड़ी लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं। और सिर्फ यूनानी की बात नहीं है, ये आयुर्वेद की भी बात है, और होम्योपैथिक की भी बात है, और भी जितने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं। तो तो ये इनको समझना चाहिए। और अपने आप को इंफीरियर जैसा आपने किसी भी फील्ड में, हाँ, किसी भी फील्ड में अपने आप को इंफीरियर सोचने की बजाय ये सोचना चाहिए कि आप कैसे उस फील्ड में एक्सेल कर सकते हो, क्योंकि हर फील्ड का अपना अपना स्कोप होता है और हर बंदा एक दूसरे से अलग होता है। अगर सारे लोग एमबीबीएस ही कर लेते तो फिर हमारे अगर दांत में कुछ होता तो डेंटिस्ट कौन होता, नर्स कहाँ से आती। इसी तरीके से हमें ये सोचना चाहिए कि आप अपना टारगेट, भले ही आप अगर नीट एस्पिरेंट हो तो आपको एमबीबीएस का करना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं होता है तो ये अदर ऑप्शंस भी, आप एक तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम का ही पार्ट हो और आप पेशेंट के सफरिंग को या डिजीजेस को, इलनेस को भी ट्रीट करने में रोल अदा कर रहे हो। सबका अपना अपना रोल होता है और आपका एक रोल है, आपको उसको समझना चाहिए। और ये तो ये बात हो गई कि जो बंदा करेंटली कर रहा है कुछ और हेल्थ केयर प्रैक्टिस, बाकी सोसाइटी में भी उनकी जो सोच है, थिंकिंग है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बस एमबीबीएस डॉक्टर ही है तो वही सब कुछ है, कोई और कुछ और कर रहा है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। अदर सोसाइटी को भी अपनी थिंकिंग में चेंज करना चाहिए कि हर बंदा अपने अपने तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम में, या फिर अगर हेल्थ केयर नहीं भी है, प्रोफेशनल कुछ और कर रहा है, इंजीनियर है या कुछ भी है, तो वो सोसाइटी में अपना रोल अदा कर रहा है, उसे अपनी चीज में अच्छे से एक्सेल करना चाहिए और बाकी सोसाइटी को इस बात को एक्सेप्ट और अप्रिशिएट करना। और जितने भी मतलब गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सब में बाकायदा वैकेंसीज होती है इनको आयुष बोलते हैं। जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है उसमें आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, होम्योपैथी, और सिद्धि ऐसे करके होता है। तो इन सब के लिए अलग से योगा। वैकेंसीज होती हैं कि आप मतलब बाकायदा इनके लिए सीट्स होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके लिए कोई जगह नहीं है, मतलब या फिर कोई मौका नहीं है। इसके अलावा इन सारे कोर्सेज में भी पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। जैसे यूनानी में भी सारे उसमें एमडी होता है, एमएस होता है। तो सारे वही सब्जेक्ट होते हैं, सर्जरी होती है, मेडिसिन होती है, गायनेकोलॉजी होती है, पीडियाट्रिक्स होती है, डर्मेटोलॉजी होती है। तो इन सब में भी आप बिल्कुल एक्सेल कर सकते हैं अपना। बिल्कुल आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कोई इन्फीरियर की बात है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की चीज़ है। क्योंकि अगर आप एमबीबीएस भी हैं और अगर आपका नॉलेज अच्छा नहीं है, आपने अपने स्किल्स को डेवलप नहीं किया, तो भी जब आप अपना डिग्री लेने के बाद प्राइवेट में जाते हैं, एक्चुअल कंपटीशन को फेस करते हैं जॉब्स के लिए, तो आपके स्किल्स के बेसिस पर ही डिसाइड होता है। तो इसीलिए अगर, और ये तो मैंने ज्यादातर देखा है कि जो गवर्नमेंट में तो सीट्स हैं ही, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो भी ज्यादा इनको प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये कंपेयर टू एमबीबीएस डॉक्टर कम सैलरी में अपना काम करते हैं,
कंपेयर टू एमबीबीएस डॉक्टर। गवर्नमेंट में तो सबकी सैलरी बराबर होती है, वेदर यू आर यूनानी और आयुर्वेद और एमबीबीएस, देयर इज नो डिफरेंस इन द सैलरी, स्पेशली इन द पेरिफेरी सेक्टर्स जैसे विलेजेस हैं, सब सेंटर है, या फिर आप बिल्कुल ही जैसे एकदम कोर विलेज में जा रहे हो, तो वहां पे भी एमबीबीएस तो नहीं पहुंच सकता। तो यही लोग पहुंचते हैं और इन लोग का बाकायदा एग्जाम होता है और बहुत ही अच्छी सैलरी और बहुत ज्यादा रेप्यूटेड इन लोग का प्रैक्टिस होती है। राइट, थैंक यू फॉर दैट। एज अ लास्ट क्वेश्चन, मैं आप दोनों से यही पूछना चाहूँगा कि हाउ डू यू फील दैट ए करियर इन मेडिसिन विल empower us to help society as a bigger picture? तो इसमें ध्यान भाई ये है कि सारे जितने भी प्रोफेशंस होते हैं वो सोसाइटी में कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर इंजीनियर है तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को बेनिफिट कर रहा है, कुछ ऐसी डिज़ाइन बना रहा है जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो रही है। कोई अगर कोई और प्रोफेशन में है, सर्विसेज में है, कोई इलेक्ट्रिशियन है तो जो है आपके घर का वायरिंग सही कर रहा है। कोई कारपेंटर है तो वो जो है आपके घर कुर्सी मेज़ बना रहा है, उस पर आप बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं। तो हर जो प्रोफेशन है वो इंसान की कोई ना कोई नीड फुलफिल करता है। लेकिन जो ये मेडिसिन का प्रोफेशन है, ये इंसान की तब मदद करता है जो सबसे ज़्यादा वो वल्नरेबल रहता है। वो जब बीमार रहता है तो बड़े बड़े ये मैंने खुद भी देखा है कि जो बड़े बड़े यहाँ पे एमडी प्रोफेसर होते हैं, जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं, तो जब वो कैजुअलिटी में आते हैं, इनको कुछ हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी को स्ट्रोक हो जाता है, किसी को कुछ फीवर भी होता है मामूली सा, तो बिल्कुल वो मतलब लाचार बेचारे बन के आते हैं, वल्नरेबल बन के आते हैं हमारे पास। तो उनको जो है उस टाइम पे उनकी हेल्प कर पाना, तो ये जो है अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये बहुत बड़ा एक इसमें अल्लाह पाक ने डॉक्टर्स को एक पावर दी है कि जब सबसे ज़्यादा इंसान कमज़ोर हो, वल्नरेबल हो, तब उसकी हेल्प कर पाए। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई डॉक्टर है, वो काबिल है, और वो सिर्फ बैठ के सिर्फ पेशेंट्स को ऑनेस्टली देख रहा है, तो वो बहुत बड़ी सर्विस कर रहा है सोसाइटी के लिए। क्योंकि बीमार मरीज को ठीक करना ही जो है वो बहुत बड़ी विद इन इटसेल्फ एक अचीवमेंट है, एक सेटिस्फैक्शन है। सही ट्रीटमेंट कर पाना, पेशेंट के साथ जस्टिस कर पाना। तो मतलब आज के दौर में अगर आज के टाइम में मुझसे कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस चीज़ में मिलता है आपको, तो मैं मतलब यही कहता हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे हॉस्पिटल में कितनी देर रुकना पड़े, चाहे मुझे दिन भर रुकना पड़े, रात भर रुकना पड़े, चाहे मुझे खाना मिले नहीं मिले, मुझे तब अच्छा लगता है जब मेरी वजह से, मेरे ट्रीटमेंट देने की वजह से कोई पेशेंट ठीक हो जाता है, किसी की कंडीशन अच्छी हो जाती है। चाहे वो पेशेंट अप्रिशिएट नहीं करे, चाहे वो उसको लगे कि उसने इन्होंने पैसे ले लिए डॉक्टर साहब ने, और जो है इलाज तो चल ही रहा था तो ठीक हो गए, तो चाहे नाम नहीं है, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपकी ट्रीटमेंट की वजह से, जाहिर सी बात है अल्लाह पाक उसको सही कर शिफा देता है, लेकिन आप जरिया बनते हैं, तो उसकी वजह से जो ठीक हो जाता है पेशेंट, तो वो अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है। उसमें फिर आप भूल जाते हैं कि आप कितने जो है देर हॉस्पिटल में पड़े रहे हैं या फिर जो भी हो। तो एक चीज़ तो ये है कि आप सिर्फ ठीक करके पेशेंट्स को बहुत बड़ी सर्विस कर सकते हैं सोसाइटी में। दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर्स का अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो सोसाइटी की नज़र में वैल्यू है वो बहुत ही रिस्पेक्ट और ऑनर की है। लोग बहुत ही रिस्पेक्ट से देखते हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब हैं, इनकी बात जो है वो सही होगी। तो आप एज अ डॉक्टर सोसाइटी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें फैला सकते हैं, उनको अच्छी बातें बता सकते हैं, जो इस्लाम की गाइडेंस टीचिंग्स हैं वो बता सकते हैं सोसाइटी को। लोगों को दीन की तरफ बुला सकते हैं, बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से, अच्छे से लोग आपकी बातें मानेंगे। तीसरी बात ये है कि डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो अगर कुछ डॉक्टर्स मिल जाएं, कुछ ऐसी सोसाइटी बनाए जिससे जो है कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन बने जिसमें लोगों का अच्छे से इलाज हो सके, और जो है कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, तो ये भी बहुत ही सोसाइटी के लिए एक यूजफुल चीज़ होगी। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मतलब फायदा, जिससे सोसाइटी को फायदा कर सकते हैं डॉक्टर्स। जी, जैसा ये कहना है कि अगर एक बीमार है, आप बस बीमार को देखने जा रहे हैं, तो उसी पे कितना सवाब अल्लाह ने रखा है। तो सोचिए अगर आप वो वजह हो, वो ज़रिया हो जिससे अल्लाह पाक ने आपको ज़रिया बनाया हो, जिससे आप उस मरीज़ की उस प्रॉब्लम को ही ठीक कर रहे हो, तो वो मतलब कितनी बड़ी बात है। तो यही सोसाइटी में आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं कि पहले तो कि जो है आप इससे सर्व द ह्यूमैनिटी कर रहे हैं, आप एक ज़रिया बन रहे हैं। और आप जो है, जो जितनी भी आप हार्ड वर्क करते हैं, जैसे अगर आप पेशेंट को देख भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि जब आप 10th के बाद डिसाइड करते हैं कि मुझे एमबीबीएस करना है, तभी आपको ये हैप्पीनेस मिल जाती है। आप 11th-12th का हार्ड वर्क, फिर अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए तो अच्छी बात है, वरना जितने भी आपको ड्रॉप ईयर्स करने पड़े। उसके बाद आप थ्रू आउट द एमबीबीएस आप बस
स्टडी करते हो। इसके बाद इंटर्नशिप से आपका एक्चुअल पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। तो मतलब इंटर्नशिप पीजी या इसके बाद आप कुछ भी करते हो, तब आप एक्चुअल पेशेंट को देख रहे होते हो। तो इतने साल आपने जो भी हार्ड वर्क करा, उसका जो रिजल्ट मिलने का टाइम होता है वो यही होता है। इसी में आपको सैलरी भी मिलती है, इसी में आप पेशेंट को भी देखते हो। तो पेशेंट, अगर एक भी पेशेंट जो है उसकी इलनेस ठीक होती है, तो जो खुशी डॉक्टर को मिलती है वो अनबीटेबल है। उसी के लिए इतनी मेहनत कोई भी एक डॉक्टर करता है। तो जब वो पेशेंट ठीक होता है, तो वो जो दिल से आपको दुआ देता है ना, वो मतलब इतनी अच्छी फीलिंग है जिसका कुछ कोई उसको जो है बराबरी नहीं कर सकता। इसके अलावा आपको खुद भी लगता है कि अरे मैंने इसकी जान बचाई, फिर वही वाली बात है, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने जैसा। और फिर आप सोचते हो कि अल्लाह पाक देख रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से हार्ड वर्क करी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर बार आप हर मरीज को बचा ही लेते हो, क्योंकि आप तो ज़रिया हो ना। आप तो सिर्फ ज़रिया हो, अगर अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी रखी होगी तो ही आपसे बचेगा, या आपकी दवाओं से शिफ़ा रखी होगी तो शिफ़ा मिलेगा। अगर शिफ़ा नहीं रखी है, तो फिर हो सकता है कि उसकी जान ना बचे और वो चला जाए, या फिर उसको दवा से फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो फिर आप ये सोचते हो कि जो है मेरी दवाओं से अल्लाह पाक ने शिफ़ा रखा है, तो इसमें भी मतलब मेरे हार्ड वर्क को तो अल्लाह पाक देख रहे हैं। अगर मान लें कोई मरीज़ आया इमरजेंसी में और मैंने पूरी कोशिश करी, अपना सब कुछ करा, सीपीआर करा, जो-जो कर सकती थी, सही दवा चलाई, सही डायग्नोसिस बनाई, तब भी उसकी जान नहीं बची, और पेशेंट के अटेंडेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि डॉक्टर जी आपने जो है लापरवाही करी। तो फिर आपको उस टाइम ये सोचना है कि अल्टीमेट तो रिवॉर्ड अल्लाह से चाहिए। अल्लाह पाक तो देख रहे हैं कि मैंने पूरी तरीके से हार्ड वर्क किया, मैंने तो सब कुछ किया। तो रिवॉर्ड तो आपको मिल ही रहा है, चाहे वो पेशेंट बचे या ना बचे। सो मतलब ये कहने का है कि इस पूरे जर्नी में जो जो भी आपको अपनी नींद गँवानी पड़ रही है, अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, अपना टाइम पूरा जो है डेडिकेटेड स्टडी को देना पड़ रहा है, इन सब के बावजूद वो जो पेशेंट के चेहरे पे स्माइल होती है जब वो ठीक हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा आपको इतनी ज़्यादा सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है। जैसे शुरू-शुरू में क्या होता था, जब हम एप्रन पहनते थे तो एमबीबीएस में हमें लगता था कि वाह! आप तो डॉक्टर बन गए हैं बहुत बड़े वाले। लेकिन जब भी कोई फैमिली वाला कुछ भी फ़ोन पे पूछ लेता था, अरे ये हो गया है, इसकी क्या दवा है? वो सब तो कुछ आता ही नहीं, बस एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। या रोड पे भी जब चल रहे होते थे, तो यहाँ तक कि जो रिक्शे वाले भी हैं, वो भी डॉक्टर जी पहले आप चले जाइए। अगर कभी कहीं लाइन में लगे हैं, तो डॉक्टर जी आपका पहले कर दीजिए। तो मतलब सोसाइटी इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है, वो बहुत अच्छा लगता है। फिर आपको लगता है कि हाँ, आप कुछ सोसाइटी में अपना रोल अदा कर रहे हो। ये है, मतलब हर कोई रोल अदा कर रहा है, नो डाउट, लेकिन आप भी अपना रोल अदा कर रहे हो इसके थ्रू। सो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है, और इसके लिए जो भी इस चीज़ को अगर अचीव कर सके तो ट्राई करना चाहिए, और अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए एट द एंड कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हम ये काम कर सकें। बिल्कुल भी एरोगेंट, ईगो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। बस एक और ज़्यादा होता है ना, जो इंसान जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करता है, वो उतना ज़्यादा हम्बल होता जाता है। तो वही बात है, आपको और ज़्यादा हम्बल होना है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है, और ज़्यादा इंसानियत की मदद करनी है, इंसानों को इंसान समझना है, अपने पैसे से, अपने इल्म से, हर तरीके से कोशिश करना है कि आप जो है लोगों की मदद का ज़रिया बनें, और आप दीन को फैलाएँ। जैसे अगर मैं एज़ अ गर्ल, अगर मैं अबाया और स्कार्फ पहन के अगर प्रैक्टिस करूँगी, तो ये भी एक तरीके से डिस्प्ले हो रहा है मेरे दीन का। मैं कितने अच्छे से लोगों से बात करती हूँ, वो उससे भी मेरे दीन रिप्रेज़ेंट होता है कि इस्लाम क्या बता रहा है। इसके अलावा अगर आप भले ही आप कुछ ना कर सको, आप एज़ अ डॉक्टर अगर मरीज़ की प्रॉब्लम को प्यार से सुन लेते हो, उसकी पूरी बात सुन लेते हो और कह देते हो कोई नहीं ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, तो यही उसके लिए काफ़ी होता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि दवा ने क्या असर करना है, नहीं करना है। रादर दैन एक ऐसा डॉक्टर जिसको पेशेंट से पैसा-पैसा चाहिए, तो एकदम खटाखट देख रहा है, हाँ, हाँ, हो गया, चलो आगे बढ़ो। तो आपको कोशिश करनी है अपनी स्किल हो, और आप पेशेंट को इंसान समझो, और ये समझो कि आप सिर्फ़ एक ज़रिया हो, और अल्लाह ने आपको चुना है। पहले भी आपसे पहले बहुत लोगों को चुना है, और आपके बाद भी अल्लाह चुन सकते हैं किसी और को। तो बस ये एज़ अ ज़रिया टू मेक योर आखिरा शुड बी योर गोल, एंड यू शुड स्ट्राइव फॉर दिस। थैंक यू सो मच। आई थिंक हम हमारे डिस्कशन पार्ट का ये एंड है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सेंड देयर क्वेश्चंस, जो भी आप डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज टाइप इन करिए। और दो क्वेश्चन हमें रजिस्ट्रेशन से भी मिले हैं, तो लेट्स वी कैन, आई थिंक वी कैन अप्रोच दैट फर्स्ट। पहला क्वेश्चन ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, जो बाहर एमबीबीएस करके वापस फिर से यहीं पे आते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस रहते हैं? आई थिंक ये पार्ट कवर हो गया है, बट थोड़ा सा आप और कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो बाहर से एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद उनको इंडिया आने के बाद पहली चीज़ तो उनको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, इसको एफएमजी बोलते हैं।
तो उसको क्वालिफाई करने के बाद उनको यहाँ पे 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ती है, और उसके बाद उनको फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए वो क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद वो नॉर्मल एज अ जो इंडिया से एमबीबीएस किया हुआ है उसी की तरह वो पीजी कर सकते हैं किसी भी ब्रांच में, नीट क्वालिफाई करने के बाद। और उसके बाद पीजी के बाद वो सुपर स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, एमसीएच कर सकते हैं। तो बस इतनी सी चीज़ होती है कि आपको एफएमजी क्वालिफाई करना है और इंटर्नशिप करनी है। उसके बाद यू आर जस्ट लाइक कोई भी एमबीबीएस जिसने किया हो यहाँ से, तो उसी की तरह हो जाते हैं वो। राइट। एफएमजी जो है और एक वो दूसरा फॉरेन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है। आप जैसे अगर मान लें आपने इंडिया से 11th 12th किया, आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो भी आपको नीट क्वालिफाई करके बाहर जाना होगा। अगर आप हमारा जो है 4.5 years का एमबीबीएस का एक्चुअल जो एजुकेशन है वो होता है, और 1 year का इंटर्नशिप होता है, चाहे आप कहीं से भी करें। बस फर्क इतना है कि जब आप फॉरेन में जाते हैं तो आपको नीट एग्जाम क्लियर करके फिर आपको बाहर जाना होगा। रैंक के हिसाब से आप कॉलेज डिसाइड करोगे कि अब्रॉड का आपको कौन सा कॉलेज से करना है। फिर वहां से एमबीबीएस करने के बाद इंटर्नशिप आपको वहां से नहीं करनी होगी, इंटर्नशिप आपको वापस इंडिया से आके करनी होगी, जिसके लिए आपको बस एक एफएमजी का एग्जाम निकालना होगा। और रैंक के हिसाब से पूरे इंडिया में आप चाहे तो अपने स्टेट में प्रेफरेंस दे दें, या जो भी है, आप उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप इंडिया में 1 साल की प्रैक्टिस कर लोगे कि इंटर्नशिप की, मतलब यहाँ का इंडिया का क्या कैसे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप रहता है, या यहाँ पे क्या डिजीजेस ज्यादा प्रेवलेंट है, एरिया टू एरिया वेरी करती है, यहाँ पे किस तरीके से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम काम करता है। बस ये करने के बाद आप जैसा एक नॉर्मल इंडिया का कोई इंटर्न किया हुआ, मतलब एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट किया स्टूडेंट हो या फिर फॉरेन मेडिकल मेडिकल ग्रेजुएट हो, कोई फर्क नहीं रहता। बाकी के हर स्टेप बिल्कुल वैसे ही होंगे। आप चाहे तो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर लो, मतलब आपको लाइसेंस मिल गया इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, या मतलब अपना कर लो, या कोई प्राइवेट ज्वाइन कर लो, या फिर आप चाहते हो कि मुझे पीजी भी करना है, मतलब जो है एमडीएमएस, या फिर जो भी आगे का करना है, आपको फिर इंडियन स्टूडेंट्स की तरह ही माना जाएगा वंस यू क्लियर दी एफएमजी एग्जाम। दैट तो इज द इसमें एक बेसिक बात और है डिफरेंस। कि हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में चेंज हो जाए ये, तो मतलब नेक्स्ट का एक एग्जाम आ रहा है, तो नेक्स्ट में ये रहेगा कि जितने लोगों ने एमबीबीएस यहाँ से किया है उनको भी वही एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम का नाम है नेक्स्ट, तो फॉरेन वालों को भी वही देना रहेगा और इंडियंस को भी देना पड़ेगा। तो ये कई साल पहले से मतलब प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की, लेकिन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। तो हो सकता है कि आने वाले सालों में ये इंट्रोड्यूस हो जाए। तो उससे फिर इंडियन और फॉरेन दोनों का एक ही एग्जाम रहेगा। राइट। एक सवाल और है। जो मदरसाओं में एक रिलीजियस स्टूडेंट्स होते हैं जो इस्लामिक स्टडीज परस्यू कर रहे हैं, तो क्या वो उस इस्लामिक स्टडीज कंप्लीट करने के बाद यूनानी मेडिसिन में जा सकते हैं? इज इट अ पॉसिबिलिटी? यूनानी मेडिसिन के लिए तो ऐसा मुझे इतना अच्छे से नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि उर्दू उसमें कंपलसरी रहती है यूनानी मेडिसिन में। तो अगर आप मदरसे स्टूडेंट हैं तो मतलब एज फार एज आई नो तो उसमें भी मतलब 10th और 12th तो चाहिए ही होता होगा यूनानी मेडिसिन में जाने के लिए। तो आप दोनों में ही जा सकते हैं फिर। आप अगर उर्दू आपकी स्ट्रांग है तो फिर यूनानी मेडिसिन आपके लिए बेटर रहेगा, लेकिन आप जरूर एमबीबीएस के लिए भी एस्पायर करें। अगर आप एमबीबीएस क्वालिफाई हो जाए तो आप उसमें इंटरेस्ट ले लें, वरना फिर आप यूनानी में ले लें। राइट। तो कामरान साहब पूछ रहे हैं कि व्हाई इज लाइफ सो डिफिकल्ट फॉर पीजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, व्हाई कांट वी मेक सम इम्प्रूवमेंट्स इन द कल्चर? तो इस ये पे कुछ बहुत आप अच्छा बोलना सवाल है चाहेंगे? ये। जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। और ये बहुत सालों से ऐसा होता आ रहा है कि फर्स्ट ईयर्स पे बहुत ज़्यादा लोड रहता है, और सीट्स डबल होने के बाद भी यही हाल है कि पहले हमारे यहाँ मेडिसिन में 12 सीट्स थी, अभी 21 सीट्स हैं, लेकिन जो वर्क कल्चर है वो सेम है ऑलमोस्ट। तो और स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में तो और बुरा हाल है। तो हमारे यहाँ तो ये है कि मतलब काम ही करना है आपको, और डांट पड़ जाती है तो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में तो मतलब काफी बार गाली गलौज भी सुनना पड़ती है, और रैगिंग होती है। और कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि जो ऑर्थोपेडिक्स होता है, जो बोन फ्रैक्चर वाला डिपार्टमेंट होता है, उसमें तो मतलब मारपीट भी होती है, कभी कभी इंसिडेंट्स सुनने को मिलते हैं। तो देखिए, इसका जो प्रॉब्लम का जो रूट है वो ये है कि कंसल्टेंट्स जो है हमारे, जो प्रोफेसर होते हैं, तो वो इस चीज़ को टॉलरेट करते हैं और अलाउ करते हैं। उनको मतलब काम से मतलब है, काम होने से। तो अगर काम नहीं हो रहा है तो वो पीजी 1 की गलती है। जो सबसे आसान ब्लेम करने के लिए है वो पीजी 1 है, तो उसको ब्लेम कर दीजिए, और जो भी उसके साथ आप करना चाहें कर दीजिए। अब लेकिन अब थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं। जो नए JR1 हैं वो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो कंप्लेंट करते हैं और अपने मतलब पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये सब अगर कोई अगर हमको चेंज लाना है तो पहले तो हम लोग प्रोफेसर्स के लेवल पे तो अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने लेवल पे जो सीनियर्स हैं तो वो जो है कम से कम चेंज लाए कि मिस ट्रीट नहीं करे अपने जूनियर्स को। और जो जूनियर्स हैं वो ये कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है
तो उसमें थोड़ा एक्टिवली उसको टैकल करें कि इन्वॉल्व करें अपने पेरेंट्स को और अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करें अगर कोई रैगिंग कर रहा है या फिर कोई परेशान कर रहा है उनको। बाकी देखिए वर्क कल्चर तो जो वर्किंग आवर्स हैं ये तो चेंज होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोड इतना रहता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो जो पीजी फर्स्ट ईयर होता है उसके पास काम के अलावा कोई और चीज़ नहीं होती करने को, पढ़ाई नहीं करनी है उसको, उसको थीसिस का काम नहीं करना है। तो उसको मतलब सारा ज़्यादातर जो मैनुअल वर्क होता है, जैसे कि पेशेंट का ब्लड निकालना है, रिपोर्ट्स लेकर के आना है, पेशेंट का बीपी मेजर मेजर करके उसमें चार्ट्स में लिखना है, और पेशेंट को लेकर के जाना है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए या फिर कोई रेफरेंस कराने के लिए, किसी चीज़ को दिखाने के लिए। तो ये सब पीजी वन कराता है, तो वो दिन भर दौड़ा करता है अपना, वार्ड में रह के ही सो जाता है वो। तो ये मतलब विद इन इटसेल्फ इतना मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल तब हो जाता है जब उसके ऑन टॉप ऑफ इट डांट पड़ती है और उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है। तब उसके लिए मेंटल जो है वो इतना प्रेशर हो जाता है कि वो फिर परेशान, ब्रेक डाउन हो जाता है वो। तो ये मतलब रियलिटी है ये, कि हर जीआर1 जो है वो एक ना एक बार जीआर1शिप में रोता जरूर है। तो मैं एक बार रोया था, तो मैंने अपने जीआरसी को बोले, तो बोले कि ये जीआर1शिप ही क्या है जो जिसमें रो ना तुम। तो वो बताया मैं भी रो चुका हूँ, तो ये चला आ रहा है पूरा सिलसिला ये। तो अब हम लोग को इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए जितना हमारे लेवल पे हो पाए, और इसकी अवेयरनेस पैदा करिए आप। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। तो अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं अपने लेवल पे तो आप लोग करिए, और इसको कम करने की कोशिश डेफिनेटली करनी चाहिए। और कम से कम मेंटल उनको लोड नहीं देना चाहिए जूनियर्स को। अगर कोई गलती हो रही है उनसे तो फिर उनको डांटे नहीं, इग्नोर कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। या थोड़ा प्यार से समझाएं। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ पीजी 1 ईयर में हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है, स्लीप डिप्राइव्ड ये सब है, लेकिन पीजी सेकेंड या थर्ड ईयर भी वैसे ही हेक्टिक है। आपको मान लें ऑन द फील्ड नहीं रहना, लेकिन आप ऑन कॉल रहते हो। इसके अलावा आपके इतने ज्यादा सेमिनार्स होते हैं, आपको खुद प्रेजेंट करना होता है। फिर फाइनल ईयर में आपको थीसिस पूरी सबमिट हो रही होती है, फाइनल एग्जाम का बर्डन रहता है। तो मतलब अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरह का स्ट्रगल है। तो ऐसी ही रहती है एक डॉक्टर की लाइफ। मोहम्मद साकिब पूछ रहे हैं कि वो एमएस फार्मेसी कर रहे हैं, तो इसमें वो क्या ऐसा बेहतर कर सकते हैं जिनसे इसका हाईएस्ट स्कोप इनको मिले, इसका फायदा सबसे ज्यादा मिले। ये भी अच्छा, फार्मेसी स्टूडेंट है। जी जी। आप ऐसा करें कि बहुत सारी हमारे कंट्री में बड़ी फार्मास्यूटिकल बड़ी। कंपनीज हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो उसमें आप जो है अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी जॉब लग जाती है, पोजीशन बहुत अच्छी होती है, और सैलरी भी अच्छी होती है। तो आप मालूम करें कि इसका क्या जो है जरिया क्या प्रोसेस होता है प्लेसमेंट का उनके अंदर। जैसे कि मेरे एक नोन है, उन्होंने एमएससी गालिबन किया है फार्माकोलॉजी में। तो वो अभी पहले वो गुड़गांव में बेस्ड थी। मेरी एक कजिन सिस्टर है, अभी वो लंदन चली गई हैं, तो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से एसोसिएट होके। तो आप ये ट्राई करें कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप ज्वाइन करने की कोशिश करें। और एज अ फार्मासिस्ट बहुत ही ज्यादा स्कोप है, आप बस उस फील्ड में कितना एक्सेल करना चाहते हैं। और बड़ी बड़ी जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो तो बहुत अच्छे ऑफर्स और प्लेसमेंट सैलरी ये सब प्रोवाइड करती है। बस आपको अपनी नॉलेज को कैसा करना होगा, पता करना होगा उसके लिए क्या करना है, और उसके लिए एम करके उसको अचीव करने की कोशिश करना है। फिर बहुत अच्छा करियर आपका बन सकता है उसमें। राइट। मैं खुद एक मेरे जान जान पहचान में एक है जो फार्मेसी में ग्रेजुएट है। वो भी ऐसे ही किसी कंपनी में से ज्वाइन होके उन्होंने अब खुद एक जी कंपनी बना ली है। तो जी जी। वो तो बहुत करोड़पति बन गए हैं। तो आजकल मिला जुला भी बंद हो गया है। तो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल थिंग फॉर हिम। तो वो हाँ। भी शायद लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मद अमानुल्लाह पूछ रहे हैं कि सर मैं पीपीटी करना चाहता हूँ, उसमें कैसा स्कोप रहेगा। शायद जी जी जी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी काफ़ी अच्छा स्कोप रहेगा। फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग ब्रांच है मेडिसिन की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो भी पेशेंट्स इनको स्पाइन की कंप्लेंट होती है, तो जैसे कि स्पॉन्डिलोसिस है या फिर कोई डिस्क प्रोलैप्स है, तो उनका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो फिजियोथेरेपी ही होती है। उसमें थोड़े दिन के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि एडिमा जो है, स्वेलिंग जो है वो कम हो जाए। उसके बाद उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी करनी ही होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप इसको अच्छे से परस्यू करें, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से परस्यू करें। और उसके बाद आप चाहें तो किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर खुद की भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, है ना। तो बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, बहुत ही ज़्यादा इसमें स्कोप है। तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा बहुत आपके लिए।
जी। जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो सिर्फ वही स्पाइनल प्रॉब्लम्स को ही नहीं ट्रीट करता। अगर मान ले एक इंसान को फ्रैक्चर हुआ है कहीं पर, और फ्रैक्चर में क्या होता है, हम कास्ट या स्लैब पीओपी लगा देते हैं, जिससे वो जो जॉइंट है काफी लंबे टाइम तक इमोबाइल रहता है, ताकि वो जॉइंट जो है वो दोनों बोन एक दूसरे से जुड़ जाए और हील हो जाए। लेकिन जब हम वो प्लास्टर हटाते हैं तो इतने लंबे टाइम से यूज ना करने की वजह से वो जॉइंट बिल्कुल इमोबाइल सा हो जाता है। तो वापस उसके एक्शन को गेन करने के लिए भी हमें फिजियोथेरेपी का ही रोल अदा करना होता है। तो बहुत ज्यादा फिजियोथेरेपी का स्कोप है, और इससे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सेल कर सकते हो। यहाँ तक कि मैंने तो ये देखा है कि फिजियोथेरेपिस्ट भी खुद को जो है डॉक्टर के ही नाम से फेमस होते हैं, और वो बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं सारी तरह की जितने भी फ्रैक्चर्स हों, जितने भी स्पाइनल प्रॉब्लम्स हों, सबको वो ठीक करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस बता-बता के। पेशेंट्स भी रेगुलरली उनके पास जाते हैं, ऐसा नहीं होता बस एक बार गए। वो जैसे कुछ-कुछ मशीन से होती है, कुछ हॉट कुछ होता है उससे करते हैं। तो मतलब पेशेंट्स भी रेगुलरली आपके पास फ़ॉलो अप करता रहता है, और बहुत अच्छा स्कोप होता है फिजियोथेरेपी में। अ, अ, शाहीन पूछ रही हैं कि यूनानी गवर्नमेंट सीट्स भी नीट से फिल होती हैं या कोई और एक्सरसाइज के लिए? अलग एग्जाम होता है यूनानी का। यूनानी के नीट के थ्रू आपको बस एमबीबीएस और बीडीएस ही अलॉट होता है। यूनानी का एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है। यूनानी का, बीएचएमएस का, बीएएमएस का, आयुर्वेद, होम्योपैथी, इन सबका अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो नीट के थ्रू नहीं होता है इनका। ओके। इमरान साहब पूछ रहे हैं कि क्या फॉरेन नेशनल्स जो एनआरआई या फॉरेन नेशनल्स होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं नीट एग्जाम के लिए? इसका मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। ये तो अब ब्रोशर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अब एक बार जो नीट यूजी का ब्रोशर होता है उसमें देख लेंगे, आपको मालूम चल जाएगी। मुझे लगता है आप एलिजिबल तो हैं, आई थिंक आप इस बस अपना इंडियन नेशनैलिटी दिखा प्रूव कर दें, फिर आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अगर आप नीट एस्पायर कर रहे हैं तो। मुझे क्योंकि एक्चुअली मेरे खुद नोन भी हैं इसका जिन्होंने थोड़ा सा 11th-12th जो है बाहर से किया है, और फिर नीट यहीं से किया है इंडिया से। नीट एंट्रेंस के मेरा थ्रू ही खुद होता है। Okay, मेरा is खुद it इस okay पे if I थोड़ा सा just ask? या प्लीज Sorry. प्लीज प्लीज मेरा क्वेश्चन जजाकल्ला, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई फॉरेन नेशनल है जो नॉन इंडियन है, वो नीट एग्जाम ले सकते हैं, उनकी स्कूलिंग किसी नॉन इंडियन बोर्ड से हुई है, तो एलिजिबल होंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन था मेरा। सो इंशाल्लाह दैट्स और गुड, सो आई कैन लुक अप। या जी, नॉन इंडियन फॉरेन कोई रेसिडेंट है? जी जी। अ, देखिए, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है अच्छे से। मैं इंशाल्लाह पता करके आपको बताऊंगा। ओके जजाकल्ला। एक और सवाल है, सर बीपीटी में एडमिशन लेने के लिए नीट कंपलसरी कर दिया गया है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बीपीटी में के लिए नीट कंपलसरी नहीं है। अलग से एंट्रेंस होता है बीपीटी का। तो उसको आप मालूम करें, उसमें एंट्रेंस दें और इंशाल्लाह उसमें वो करें। नीट के जरिए बीपीटी एडमिशन होता है। शादमान साहब पूछ रहे हैं कि why is it that in medical field you always call seniors sir? तो ये कल्चर मेडिकल फील्ड के अलावा किसी और में तो नहीं है, so why so much respect for seniors? जी, तो वही हम लोग कल्चर की बात कर रहे थे कि ये अच्छा कल्चर नहीं है, लेकिन अब चला आ रहा है। तो असल में इसमें आप एज अ फैकल्टी कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेसर बने और आप आपकी अपना मेडिकल कॉलेज हो, आप उसमें अथॉरिटी हो, तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप खुद ही किसी के अंडर हैं, तो आप यू कैनॉट चेंज द सिस्टम। तो आप पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं कि देखिए, इसमें होता ये है कि आप एमबीबीएस जिसके साथ कर रहे होते हैं, कभी कभी वो भी आपका जूनियर बन जाता है। तो वो भी फिर आपको सर बोलने लगता है। तो आप पर्सनल लेवल पे कम से कम ये कर सकते हैं कि उससे बोल दें कि तुम मुझे सर मत बोलो भाई, भाई बोलो जैसे पहले बोलते थे। तो उसके अलावा आप पूरे सिस्टम को तो एज अ रेसिडेंट एज अ वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये चले चले ही वो पूरी सिस्टम चला आ रहा है। तो ये सही नहीं है सिस्टम। इसको बिल्कुल चेंज होना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग इसको चेंज करने की पोजीशन में नहीं है। राइट। और एक सवाल है कि व्हाट आर द डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल आफ्टर यूजी? आई थिंक मेडिकल फील्ड से कोई डिप्लोमा कर सकते हैं आफ्टर यूजी। अच्छा, यूजी के, अगर आप एमबीबीएस यूजी की बात कर रहे हैं तो जी जी, यूजी मतलब एमबीबीएस के बाद, जी जी। तो उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ होता है, मतलब जो भी एमडी के सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंस्टेड ऑफ एमडी आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो डिप्लोमा जो होता है वो 2 साल का होता है। और दो तरीके का डिप्लोमा होता है, एक डीएनबी से डिप्लोमा कर सकते हैं आप, और एक प्लेन डिप्लोमा होता है। तो जैसे कि गायनेकोलॉजी में अगर कोई डिप्लोमा करना चाह रहा है, तो या फिर वो डीएनबी गायनेकोलॉजी कर सकता है। तो जो डीएनबी होता है वो मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस में होता है। या फिर कोई डीजीओ कर सकता है, डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। तो ये जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है, डीजीओ। तो ये दो तरीके के डिप्लोमास होते हैं, दोनों 2 साल के होते हैं। और एमडी के इक्विवेलेंट होने के लिए आपको दोनों ही करने पड़ते हैं। मतलब अगर आप किसी फील्ड में डीसीएच मान लीजिए चाइल्ड हेल्थ में कर रहे हैं आप, पीडियाट्रिक्स की जगह, तो उसको
टू मेक दैट इक्विवेलेंट टू एमडी आपको डीएनबी भी करना पड़ेगा पीडियाट्रिक्स में। तो आप 2 साल डिप्लोमा करें और उसके बाद 2 साल डीएनबी करें, फिर जाके आपकी डिग्री जो है वो एमडी की इक्विवेलेंट हो जाएगी। इसका ये होता है कि डिप्लोमा में एडमिशन थोड़ा इजियर होता है, कम रैंक में मिल जाता है। और एमडी कोई एमएस तो 3 इयर्स का कोर्स होता जी। है, लेकिन डिप्लोमा डीएनबी 2 इयर्स का होता है। कम रैंक पे अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है और आप परस्यू करना चाह रहे हैं तो आप डिप्लोमा या डीएनबी कर सकते हैं। बस फर्क इतना होता है कि अगर आपको ये करने के बाद, पीजी करने के बाद किसी मेडिकल कॉलेज में एज अ प्रोफेसर बनना है, तो फिर आपको डिप्लोमा के बाद सेकेंडरी डीएनबी करनी पड़ेगी, तब आप एमबीबीएस मतलब एमडी एमएस के इक्विवेलेंट बनेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करना है खुद का या फिर किसी और प्राइवेट प्रैक्टिस में करना है, तो फिर ये डिप्लोमा भी इनफ होता है। लेकिन हाँ, जब आप एक्चुअल कोर्स करने के बाद एक्चुअल फील्ड में जाएंगे तो कंपटीशन के बेसिस पे जाहिर है कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है एमडी एमएस को प्रेफर करेगी ओवर प्लेन डिप्लोमा। ओके, कोई ऐसा डिप्लोमा है जो नॉन मेडिकल यूजी का स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएटिंग वो पीजी कर सकता है? मतलब कि एमबीबीएस के बिना कोई 12th के बाद डिप्लोमा करना चाह रहा है मेडिकल नहीं फील्ड नहीं, में आने के कोई लिए? नॉन रिलेवेंट यूजी हो उसका, नॉन मेडिकल फील्ड से, नॉन तो मेडिकल कोई यूजी। ऐसी, या तो वो अगर पीजी यूजी के बाद अगर वो मेडिकल में आना चाहता है तो इज देयर एन ऑप्शन? मतलब कि उसने यूजी जो है वो किसी और फील्ड से किया है, लेकिन अब वो फील्ड मेडिकल से में किया स्विच है, होना चाह रहा है। या तो वो तो यू देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज अ डॉक्टर तो आपको यूजी तो करना ही पड़ेगा इसमें। एमबीबीएस या फिर कोई और यूनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथ तो आपको करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप मेडिकल फील्ड में आना चाह रहे हैं, नॉट एज अ डॉक्टर बट एज अ सपोर्टिंग कोई, तो आप उसमें कर सकते हैं। आप टेक्नीशियंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं रेडियोलॉजी में, और आप नर्सिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे मतलब इसमें अलग अलग होते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप डॉक्टर अगर आपको प्रेस्क्राइब करनी है मेडिसिन, तो आपको लाइसेंसिंग कोर्स जो होता है वो करना पड़ेगा, एमबीबीएस या फिर बीएचएमएस या फिर यूनानी या फिर आयुर्वेद। या अगर आप नॉन एमबीबीएस हैं, आपने किसी और चीज से ग्रेजुएशन किया है और आप आना चाहते हैं, तो आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। ओके, आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ आवर इवेंट टुडे। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने टाइम निकाला। बहुत एक थैंक्स अ लॉट बड़ी फॉर चीज़ होती इनवाइटिंग है अस। टाइम निकाल के यहाँ इवेंट में आपने हमको टाइम दिया। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू कि आपने आपका नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक द ऑडियंस जिन्होंने टाइम निकाल के ये इवेंट अटेंड किया। And I would like to request everyone to please fill the feedback form. कोई भी अगर आपको feedback होगा तो so please share that with us so that we can improve ourselves. Thank you. जज़ाकल्लाह Thank you खैर। so much. थैंक यू फॉर Have a गिविंग nice अस day. द क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी। है उसको। ये पूछिए सवाल पूछिए। एक्चुअली मेरी बेटी अभी 11th में एडमिशन ली है अभी, तो वो साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करे। तो इनकेस अगर नीट में अगर उनको क्वालिफाई नहीं हुआ, इनकेस अगर खुदा खास्ता, तो और ऑप्शंस क्या क्या है उनके लिए मेडिकल फील्ड में, अपार्ट फ्रॉम एमडीडी एमबीबीएस और डेंटिस्ट के अलावा और कुछ दूसरे क्या क्या ऑप्शंस है? जी, इसमें देखिए, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर ही बनाना है तो फिर आप उनको उसमें यूनानी या फिर आयुर्वेद या फिर होम्योपैथिक का भी करा सकते हैं। और आप प्राइमरी तो यही लेके चलिए कि एमबीबीएस क्वालिफाई करना है। तो बहुत आसान हो गया हाँ, आज के ज़माने में, हाँ, बहुत सारी सीट्स हो गई है गवर्नमेंट की। और अगर एमबीबीएस नहीं भी क्वालिफाई होता है तो बीडीएस क्वालिफाई हो जाएगा। तो इंशाल्लाह पहले तो वही लेके चलें। अगर नहीं होता है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथ। अगर उसमें भी नहीं है तो फिर आप फार्मेसी के लिए जा सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में भेज सकते हैं, और नर्सिंग में भेज सकते हैं। तो ये सब अलग अलग फील्ड हैं हाँ। जिनमें आप ट्राई कर सकते हैं। साइकोलॉजी भी कर सकते हैं अगर अगर साइंस में आता है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी तो अलग से एक फील्ड होती है। साइकोलॉजी का के लिए आप बीएससी, एमएससी, फिर पीएचडी में जाइए। तो हमारे में जो ब्रांच होती है वो साइकेट्री होती है, तो वो अलग चीज़ है। साइकोलॉजी करने के बाद आप, जी जी, प्रेस्क्राइब नहीं कर जी। पाएंगे। तो साइकेट्री करने के लिए भी आपको पहले एमबीबीएस करना पड़ेगा, उसके बाद एमडी इन साइकेट्री कर सकते हाँ, और एमबीबीएस के लिए एम करें, टारगेट करें, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें। और अगर ना हो पाए खुदा ना खास्ता तो फिर ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप करने से भी नहीं हो रहा है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो अब्रॉड जा सकते हैं। वो सब भी ना हो तो डेंटल ट्राई करें। वो ना हो तो फिर इन बाकी इसमें जाएं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। हैं। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। और अस्सलाम कोई थैंक यू। वालेकुम। सवाल है तो, और किसी को कोई सवाल है तो वो अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज विल कंक्लूड आवर इवेंट। आई थिंक कोई नहीं है। थैंक यू। प्लीज एवरीवन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि फिर से वो फीडबैक फॉर्म भरिए। दैट वुड मीन अ लॉट टू अस। एंड डॉक्टर सना
डॉक्टर शानुल्लाह खान, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। It was a Thank you. pleasure to have you. Have a nice day, everyone. Same here. अस्सलाम। Assalamu alaikum. जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Assalam. Assalam. अस्सलाम वालेकुम।